ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲਾ ਹੋਏ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਡਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੀ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਬੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਸਨ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੈਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਮੌਤ, ਇਸਲਾਮ ਮੌਤ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਣ ਵਰਗੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਔਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਖੂਹ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਲ ਲਿਆ, ਪੋਚਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ, ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
कि सतगुरु दा सीस मैं मात नानकी को लैके जाना है। सतगुरु दा सीस इन्हां दे पुत्र गोबिंद राय को लैके जाना है। इस सीस नूं उस मां को लैके जाना है जिन्हें अपना सुहाग वार के तिलक जंजू वालियां दे सुहाग बचा दिते हैं। किन्ना कुछ सैल्फ कंट्रोल होवेगा भाई जैता जी ते। मैं कहना किन्ना कुछ जरिया होवेगा भी मैं सीस चुकना है। महाराज आके बैठ गए। सवाल फिर हुई कसे पीटे। सतगुरु कहंदे आ मेरी इच्छा है काजी जलाद दोनों बैठे आ। हजूर कोतवाल भी कोल है। कोतवाल अब्दुल्ला काजी अब्दुल वाहिब ते जलाद जलालुद्दीन ये समाने का रहने वाला सी। तिन्ने ने सतगुरु बचन कर दिया कि मैं इशनान कर लिया है। किन्ने होर कोई इच्छा? किन्ने एक इच्छा होर है, मैं जपजी साहिब का पाठ करना चाहना वा। गुरमुखो वेखो एक तो नितनेम विच जपजी पढ़ते हो। मैं उन्हां लोकां लई नहीं बोल रहा जिहड़े तर्क की कैंची लैके हर गल नूं कतरी जांदे आ। चेते रखियो जिन्ने जपजी साहिब दे पाठ भिज के करोगे, जिन्ने गुरमुख महापुरुषां ने चलाना किया उन्हां पहलां जपजी साहिब पढ़िया है। बाबा बुढ़ा साहब ने जपजी साहिब पढ़िया, गुरु हरगोबिंद साहब सामने। भाई गुरदास साहब ने जपजी साहिब पढ़िया। गुरमुखो हुणे असीं पढ़िया, भाई मती दास ने पढ़िया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने शहादत तो पहला जप का पाठ किया है। महाराज जलाद तैयार कर रहे तेग। एक बार मैं कथा च बेनती की सी है तो कवि का ख्याल रोपड़ दे साडे कवि सन बहुत प्यारे सरदार तरलोक सिंह जी गुंचा। ये उन्हां दी रचना है। ते जिस बंदे दा ख्याल होवे ओदे ख्याल नूं संगत च कहना चाहिए। एवें अपने नां थल्ले नहीं ला, ये पाप हुंदा है। उन्हां मैनूं पटना साहिब किताब दित्ती ते मैं इहदे चों गुरु तेग बहादुर बारे जो उन्हां लिखिया मैं वो तुहानूं कहण लगा। सतगुरु कहदे दे औरंगजेब नूं सुनेहा दे दे, क्योंकि औरंगजेब इत्थे नहीं सी जी, याद रखियो काजी सी इत्थे। औरंगजेब नूं सुनेहा दे दी। उन्हां दा ख्याल है तेग लफ्ज़ ते, मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी। ये असल च उन्हां दी रचना है। मैनूं एक दिन कथा करदिआं किसे क्या, क्योंकि पहली बारी दास ने जदों ये साका बेनती किया उदों दिता, कईयां ने कहा भी भाई साहब दी नहीं नहीं मेरी रचना नहीं। मैं उत्थे कहा यह रचना भाई गुरपुर वासी भाई तरलोक सिंह दी है। वो कहंदे ने मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां। मैनू लकबा है तेग बहादुरी दा, मेरे सामने नहीं सकदियां खो तेगां। मैं तां जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेख पिता दियां पहनियां 2 तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगां। हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगां। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह ने क्या खंड बेहंडंग खलदग खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग पुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रबंध सुख शंका तंगता करन दुर्मत दरनंग किल विखरनंग अस सरनंग जय 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 कारण सृष्ट उभारन मम प्रतपारंग जय तेगंग। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगां। महाराज ने जपजी साहिब का पाठ शुरू किया। अंबर ने कीर ने पाए, हवा ने वहन पाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखता है पशु पंछी कुरला उठे। जप का पाठ शुरू होया। 54 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर साहब जी जो शहीद होए। 45 साल की उम्र सी जिदन घर बेटा पैदा होया है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जपजी का पाठ शुरू होया ते परसों शहादत वाले दिन जिन्ने तुम सिख बैठे हो एक एक जपजी साहब का पाठ गुरु तेग बहादुर का जरूर करियो अपने नितनेम तो इलावा। महाराज ने
हो सके दोपहर ढलदी भी भावें घर विच बैठिया भी एकांत विच इस नूं फील करदियां महाराज शहादत दा जाम पीण लगे। सतगुरु ने जपजी साहिब दा पाठ शुरू किया। जलाद जलालुद्दीन तेग तिखी करी जा रहा है। महाराज जी ने जदों शब्द कहा कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कहाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, पूरे जोर नाल तलवार चली, गुरु तेग बहादुर दा सीस धड़ तो वखरा होके डिग पिया। हनेरी चली, झखड़ झूलिया, कंब उठिया सारा संसार। भाई जैता शाम पैंदी है, सतगुरु दा सीस कपड़े च लपेट के सीने नाल ला के तुर पिया। मैं अर्ज की सी 11 नवंबर की रात नूं, 11 नवंबर नूं महाराज शहीद हुंदे आ, 1675 नूं रात नूं रकाबगंज भाई लखी शाह दा घर सड़दा है। 11 नवंबर शाम नूं, रात नूं, अद्धी रात नूं उस अपने घर नूं फूक दिता। ओदा पुत्र नगाइया नाल उन्हें हेल्प की पूरी। इथों 11 नवंबर शाम नूं भाई साहब रात नूं निकलदे आ। 12 नवंबर अमृत वेले बागपट पहुंचते आ। थोड़ा जा समा आराम करते हैं, इथों सीस चुकते आ। मैं संखेप जा क्योंकि ज़्यादा डिटेल च नहीं, आने वाले समय 2 दिन होर विचार करनी है। इथों सीस चुकते आ, तरावड़ी जा पहुंचते आ। तरावड़ी वो परिवार धोबियां दा इंतजार कर रहा गुरु तेग बहादुर के दर्शनों की, उसनों दर्शन कराते आ। उतों सीस चुकते आ, अंबाले पहुंचते आ। टांगरी नदी इत्थे आराम करते आ। अंबाले माजरी महला उतों चलते आ ते नाभा साहिब पहुंचते आ। दरगाही शाह मुसलमान ही इंतजार कर रहा है, उतों सीस चुकते आ। कीरतपुर साहिब पहुंचते आ। कीरतपुर साहिब आनंदपुर सुनेहा पहुंच जाता है, माता नानकी नूं तेरे पुत्र दा सीस आया है। मात गुजरी नूं सुनेहा पहुंचता है, तेरे सुहाग दा सीस आया है। गुरु गोबिंद राय जी नूं सुनेहा पहुंचता है कि तुहाडे पिता दा सीस आया है। परिवार हुंदा है, सीस नूं नमस्कार कीती जांदी है। शब्द पढ़दियां पालकी भी सीस टिका, सीस आनंदपुर साहिब पहुंचता है। 17 नवंबर 1675 नूं 7 दिनों बाद कह लो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7 दिन हो गए। 17 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर दे सीस दा संस्कार घर दे बिल्कुल सामने हुंदा है। जदों आनंदपुर साहिब जांदे हो, भोरा साहिब दे सामने शीश गंज है, उत्थे संस्कार हुंदा है। सामने अकाल बुंगा है जिथे गुरु गोबिंद राय खलोंदे आ। जदों संस्कार हो रहा है, भाई जैता जी बिरहा विच ने। महाराज आवाज देंदे ने, भाई जैता आओ मेरे पास। उम्र करके वड्डे ने भाई जैता जी। भाई जैता जी की रचना भी है जी, एक कविता भी है भाई जैता जी दी लिखियां। चलो फिर किते मौका मिले अपना सांझी करांगा। आवाज देंदे ने, तू बिरहा ना कर, सेवा बड़ी तू कीती, तू गुरमुखा वो फर्ज निभाया जिहड़ा एक पुत्र निभांदा है। रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे, कुछ मंग। भाई जैता जी कहंदे सतगुरु अमृतसर दे इशनान बख्श दिओ। इत्थों फिर भाई साहब अमृतसर जाते हैं। उत्थे फिर हजूर पिता दे सीस नूं देख के इस बचन नाल समाप्ति, तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका। याद रखियो इत्थे एक एक लफ्ज बड़े कमाल दा। ताका दा अर्थ है उन्हां दा, उन्हां दा है ना तिलक जन्यू, पर द्वैश च नहीं। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, किनो बडो कलू में साखा। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। ठीक कर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरिया, करी ना किनू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को
शोक है 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 सब जग भयो जय 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 सुरलोक सच ए वे। उथे हजूर कहंदे ने जग विच भी खै खै कोई खै, जग विच है खै, सुरलोक विच जय जय ते सच ए जे। अज इस मृत मंडल विच भी गुरु तेग बहादुर दी जय जय। सतगुरु किरपा करे। आप संगत दा बहुत धन्नवाद।